Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 6, Bhakti Supri tradition. MCQ based questions. We are going to practice this. Last two video which I made where I discussed about the various questions from this chapter. Dear student, assertion based question, option based question, that was discussed by me. So let's start the question. This paper is also provided by me in your class. Everyone have this paper, RT 3.2. According to that, some question is very important. Study what the result come on the basis of this paper. It is not so good. I became so astonished that according to me this chapter is very easy, and as you told me that this chapter is very easy, but your performance is not satisfactory. So that's why it is very necessary to solve this paper. So my dear, question is assertion based question. We will try to understand today. In the assertion based question, I hope you have remember the question number 1 to 5, question number 1 to 10. 1 to 10, that is the assertion based question. आप सब ये यहाँ पे आपके पूरे पेपर जो थे, the whole paper divided into 3 categories. First category is in which the option based question, second category is assertion based question, and third category is that was case study based question. I hope you have remember, if you will watch my previous video where it was discussed by me, the option based question, multiple choice type question, like the question number 1, identify the Bhakti traditions which favored the widow remarriage, where I told you with the help of board that कि यहाँ पे भक्ति ट्रेडिशंस के लिए कौन कौन संप्रदाय या कौन संप्रदाय उसके फेवर में था. अलवार्स, नैनार्स, लिंगायत एंड सिद्ध. It is very clear given in your book that Lingayats they favored in the widow remarriage. So option is C. Just like second question, which of these statement is correct? Early Bhakti movement were led by Alvars Nainars. The Alvars were devotees of Shakti. The Nainars were devotees of Vishnu. The Sufi were not a part of the Islamic world. Alvars were devotee of Shakti. That is the wrong answer. So option B. Option 3, during which period was there is striking visibility to wide range of god and goddess in sculpture and text? 6 to 18th, 8 to 18th, 8 to 21, 7 to 16. 8 to 18th century because your chapter name is Bhakti Supri traditions from 8 to 18th century. तो यहाँ पे आपको कुछ देखना ही नहीं था. ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैंने बात किया था. मैंने कहा था विच ऑफ दीज इज इंपीरियल ऑर्डर, फरमान, सरियाज. विच ऑफ दीज इज एन इंपीरियल ऑर्डर? सरिया, सलात, हज, फरमान. फरमान इज इंपीरियल ऑर्डर except other the 3 option, that is religious order. Okay, option A, फरमान. what do you mean फरमान? फरमान means राजा जिन चीज़ों को राजकीय आदेश प्रज्ञापित करता था, निकालता था, देता था, वो फरमान कहे जाते थे. नेक्स्ट इज दैट, इस तरह से हमने आपसे कई सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कराए थे. असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी हमने आपको कई सारे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए. असर्शन बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू के बाद असर्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली. द स्टेटमेंट इफ यू विल नॉट रीड केयरफुली देन विदाउट एनी हेजिटेशन आई वांट टू से दैट कि आप गलत कर ही देंगे. सो इट इज़ very easy when you will read carefully.
एंड व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज विल बी क्लियर। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अगर स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन क्लियर सही हो जाएगा। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में हमने 1 to 10 पे डिस्कस किया था, आई थिंक 1 to 8 तक डिस्कस किया था, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बचे थे। आज मैं 7 क्वेश्चन से डिस्कस कर दूंगा फिलहाल, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसमें मैंने कहा था कि असर्शन है when the sheikh died his tomb shrine became center of devotion for his followers. Reason are people believe that the dead saint was united with God and closer to him after death as they compared to when he was living. तो यहाँ पे वो सही है, ऑप्शन इज राइट, ए एंड आर बोथ इज करेक्ट एंड आर इज द right explanation of A. Why? Because if you will read the Sufi tradition, so in the Sufi traditions I was told you that what do you mean by Sufi. Sufi, there is no word Sufi, there is Tasawwuf. Sufi is English word. Sufi derived from Saf, Safa, Sufa and Sophia. It was also explained by me with the help of board in my previous video. You have to see, you have to watch that video. Okay, so what was their practice? Sufi, they mostly, the famous Sufi sect was Chishtiya, they were Besara or Besariya. Chishtiya, they believed that Allah is one and everyone should equal against God, either Muslims or Hindus. Their main aim that was based on love and affections to the common peoples. The futur, it means langar, the gifts, just type of their practices which was happening, which was practicing in their dargah, that was the very famous. Sheikh, Khanka, Silsila, these all terms were discussed by me. Sheikh, the teachers, the religious teacher is called Sheikh or ulema. Dargah, obviously, according to question, it was given in question that Dargah, it means a Persian term meaning court. Dargah Persian term है और उसका मीनिंग कोर्ट है। दरगाह जब जहाँ होती थी वहाँ जाते थे लोग। खानका, और डिमिनिव खानका, खानका इज द प्लेस ऑफ द सूफी सेंट, सूफी संतों की जो रहने की जगह थी उसे खानका कहते थे। तो ये जो चीज़ें थी ये सूफीज़म को एक नया स्वरूप दे रही थी। चिश्तिया सेक्ट के सूफी संतों ने काफ़ी बड़ा क्रांतिकारी योगदान दिया। अब आइए 7 से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड द सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप द हॉस्पिटल इन द वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज डिस्कस बाय मी, बट अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस। असर्शन था ये, शेख निजामुद्दीन ऑप्शन शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड द सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड डेपुटेड देम एज सेट अप द हॉस्पिटल ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। रीजन, द टीचर्स, practices and organization of the chief as well as the fame of Sheikh spread rapidly. This in turn the drew pilgrims to his shrine and also to the shrine is the spiritual. तो यहाँ पे क्या है, both is correct, A and R both is correct. Question number 7, it is given in your book. When you will read, you can easily understand that this question is correct. Both A and R is correct, and R is the right explanation of A. सूफी जो संत होते थे वो अपने शिष्यों को अपॉइंट करते थे भिन्न भिन्न भागों में, और ये भिन्न भिन्न भाग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में सूफी अपने फॉलोअर्स को अपॉइंटेड करते थे। सूफी के जो फॉलोअर्स थे वो सूफीज़म की उसी विचारधारा को आगे फैलाते थे जो उनके टीचर्स के द्वारा उनको मिला था। और चिश्ती संप्रदाय इसलिए फेमस हो रही थी तेज़ी से क्योंकि वो बेसरा परंपरा से थी, शरीयत की एक्सट्रीम प्रैक्टिस के अगेंस्ट थी, शरीयत की एक्सप्लेनेशन को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहे थे, प्यार मोहब्बत से रहने की बात कर रहे थे, और सभी धर्मों में वो कुछ न कुछ समानताएँ देख रहे थे।
इसलिए सभी धर्मों के लोग उनके प्रति आकर्षित हुए और एक बड़े पैमाने पे लोग उनसे आकर्षित हुए, अपने को इस्लाम में कन्वर्ट कराए। तो यहाँ पे जो चीज़ें बदल रही थी, स्पेशली 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी में, वो सूफीज़म का एक बड़ा उनके लिए उपलब्धि थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टू टॉम ऑफ सूफी सेंट इज प्रिवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। Amongst these, the most recovered shrine is that the Khwaja Muinuddin, popularly known as Garib Nawaz. Or it was eventually the popular because of the shrine's architectural brilliance and the beautiful surroundings. Obviously, that reason is wrong, because Khanka, that was based on this very simple building. There is no decoration, there is no architectural specific quality. Okay, so here the question number 8 or 18, whatever in your paper, the pilgrimage called Ziyarat, a tomb of Sufi saint prevalent over the Muslims world. Among these, the most revered shrine is the Khwaja Muinuddin, popularly known as Garib Nawaz. गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ज़ियारत करने वालों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया था। लोग वहाँ बड़ी तेजी संख्या में पहुँचने लगे। ये बात एकदम सत्य है। दूसरी बात जो कह रहा है, कारण जो बता रहा है, कह रहा है इट वॉज आइडेंटिटी पॉपुलर बिकॉज, कहता उसकी पहचान, उसकी ख्याति का कारण बनी क्योंकि जो श्राइन थी वो उसकी वास्तुकला बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत था, और उसके चारों तरफ बाग बगीचे लगे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये गलत है। ओके, सो आंसर इज A is true, but R is false. C answer is right answer. Option C is correct. अगला क्वेश्चन है, many poets and engaged in the explic of the implied dialogue with these new social situations, ideas and institutions. Kabir, 14th to 15th century, is one of the most outstanding example of the poets and who emerged within the context. Are his rich corpus of the verses also very significant? The Kabir was and is to the present a source of the inspirations for those who question the interhead religious and social institutions, ideas and practices in the search other divine. Here A and R both is correct without any hesitation. आप दोनों सेंटेंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसी का, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन का। कबीर्स ऑब्जेक्ट वाज टू रिकाउंसिल हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड एस्टेब्लिश हार्मोनी बिटवीन द टू सेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बार बार वो दोनों धर्मों की बुराइयों की बात करते हैं, दोनों धर्मों के कुप्रथाओं का उल्लेख करते हैं और इसे दूर करने की बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के घर बेटी ब्याहें, घर में करे सगाई, तो इधर भी कहते हैं कि ये कहीं ईमान से कहीं गुदा एक कहीं चम, कहते हैं कि ये हिंदुओं सब एक ही शरीर का बना हुआ है, तुम ये जो अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस समाज में कर रहे हो उसे बंद करो। फिर वो कहते हैं भगवान ने उसे बनाया, भगवान ने तुम्हें बनाया है, दोनों के में कोई अंतर नहीं है, तुम कौन होते हो ये डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी कबीरदास जी अपने उपदेशों में उन लोगों से करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। फिर कबीरदास जी मुस्लिमों पर फिर कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए, कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके मस्जिद बना लेना और फिर मस्जिद के पे चढ़ के अल्लाह अकबर चिल्लाना से अल्लाह थोड़ी सुनेगा, अल्लाह क्या बहरा हो गया है। वहीं पे हिंदुओं के लिए कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताकि ऊंचा की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से मुझे हरि मिले, भगवान मिले, तो मैं पहाड़ पूजूंगा, लेकिन इन दोनों से अच्छा है पत्थर के रूप में मैं घर की चकिया पीसूं, जिसका पिसा हुआ सारा संसार खा रहा है, मेरे लिए वो ज़्यादा पवित्र है। इस तरह के
जो कुप्रथाओं पे चोट करने की जो स्टाइल थी कबीर की, वो अपने में यूनिक थी। वो सामान्य भाषा में समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे थे। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, कहता है अशासन बेस्ड था कबीर। इसमें आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन है। पहला आपने पढ़ लिया का आंसर, मुस्लिम एंड स्टेब्लिश हार्मनी बिटवीन द टू सेक्ट। कबीर्स ऑब्जेक्ट वाज टू reconcile Hindu and Muslim to establish harmony between two sects. Or he was born near Banaras to Brahmani's widow, but he was brought up the Muslim couple who were weavers by profession. Absolutely right. A and R both is right, but R is not right explanation of A. Okay? क्यों कह रहा है, कबीर का जो उद्देश्य था वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता था। उसने कबीर पैदा हुए विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से और फिर उनका परवरिश हुई मुस्लिम फैमिली में। ये कहता है ये उसका कारण था। कहते हैं ये कारण नहीं है, यद्यपि दोनों बातें सही हैं लेकिन कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक पिक दिखाया है। आप भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ें चैप्टर 6 में ही। आप जगन्नाथ मंदिर की तीनों प्रतिमाओं को देखें जो आपके बुक में दिया हुआ है। जब आप तीनों प्रतिमाओं को देखेंगे तो उन्हीं प्रतिमाओं को देख के पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, स्टडी द पिक्चर एंड देन रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट द केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस पिक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ, जो पिक्चर में दिखाया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है किसका, कहते हैं कि नैनार भक्ति मूवमेंट, लिंगायत सेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट, अलवार भक्ति मूवमेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट ही था। इसके बाद क्वेश्चन है, लॉर्ड जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विथ, जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऑल ऑफ एबव। आंसर बी इज करेक्ट, विष्णु। लॉर्ड जगन्नाथ इज एसोसिएटेड विथ विष्णु। चूज द करेक्ट ऑप्शन। असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। जगन्नाथ वाज, नहीं सॉरी, चूज द करेक्ट आंसर है, आंसर को करेक्ट करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जगन्नाथ वाज एंटायरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड रीजन। लॉर्ड विष्णु वाज worshipped the various avatars. Both A and R correct. R is right explanation. Both A and R is correct, but R is not right action. And कहता है आगे कि incorrect but correct. C, R is incorrect but A is correct. A is incorrect but R is correct. C, D, A is correct but R is not correct. What will be answer? Option B. ऑप्शन बी क्या है आपका? ऑप्शन बी देखिए उसमें लिखा है कि बोथ आर। ऑप्शन बी आपके ऑप्शंस में है। ऑप्शन बी में क्लियर लिखता है कि किन चीज़ों के आधार पे ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट राइट ऑप्शन ऑफ ए। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली फर्स्ट is correct but another wrong. Question number 8, C is correct answer, another answer is wrong. अब आइए केस स्टडी वे पे बात करें। केस स्टडी में ही आपने देखा होगा कि विष्णु के वाराह प्रतिमा के द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया जा रहा है, पृथ्वी को बढ़ाया जा रहा है। ओके, next question is choose the correct answer. Only A is correct, both A and R is correct. Option A is correct, A is correct. अब next question है, observe the picture and answer the following question choosing the correct option. कहता है what is the name of this Buddhist goddess. आपको एक चित्र दिखा रहा है, एक फिगर दिखाएगा, आपके बुक में है ये फिगर, अगर आप ध्यान से देखें दिस फिगर। कहता है कि ये किसकी फिगर है और किस धर्म से संबंधित है। मातृभूमि, कामाख्या देवी, मारीची,
none of these. करेक्ट आंसर इज सी. सी इज मारिची देवी. कौन है ये? मारिची देवी है, बौद्ध धर्म की मारिची देवी है. ओके, कहता है आगे, वेयर वॉज द टेराकोटा स्कल्पचर फाउंड. टेराकोटा के स्कल्पचर कहाँ से मिले? आंसर डी, बिहार. नाउएडे गोरखपुर इज फेमस फॉर टेराकोटा प्रोडक्शन. डियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. द फिल इन द ब्लैंक्स करना है. दी सेक्ट चैंटेड डिवोशनल कंपोजिशन एज ए मोड ऑफ वर्शिप. द चिश्तिया सेक्ट, वैष्णव, इस्लाम, शक्ति, सूफी. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैष्णव. वैष्णव, द वैष्णव सेक्ट चेंज द डिवोशनल कंपोजिशन ऑफ मोड ऑफ वर्शिप. इन लोगों ने क्या किया? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने सेक्ट के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया और दूर दूर क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? भजन करते हुए पहुंचे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्ट बुद्धिज्म वाज द. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धिज्म वाज द स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ सती, कास्ट सिस्टम, लॉर्ड ट्रिप, सिंपल लिविंग. बुद्धा किन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे? दैट विल बी अ कास्ट. आई मीन टू से दैट बुद्धिज्म वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के प्रति वो उसका विरोध करते थे. अब आइए, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द चूजिंग द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे एक मास्क दिखाया हुआ है, आपके बुक में भी मास्क दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. मास्क्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा दूर से ही सही. ये वाली मास्क्यू है, तो आपने मास्क्यू देख लिया. मास्क्यू में विच इज हिस्टोरिकल प्लेस इज दिस. कौन सा ये ऐतिहासिक स्थल है? जामा मस्जिद, हुमायूं टोम, अत्तिया मॉस्क्यू एंड सिकंदर शाह मॉस्क्यू. क्वेश्चन सी, अतिया मासूक की जो ये है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच मटेरियल हैज़ बीन यूज टू बिल्ड इट? द वाइट मार्बल, लाइमस्टोन, रेड स्टोन, ब्रिक्स. विच मार्बल हैज़ बीन यूज टू बिल्ड. कहता है कि रेड मार्बल. ओके, और यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस इज दिस. जामा मस्जिद तो बता दिया मैंने, अतिया को है. इन विच प्रेजेंट डे कंट्री इज लोकेटेड. इन विच प्रेजेंट डे कंट्री इज लोकेटेड. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. ऑप्शन डी, बांग्लादेश. विच मेटल हैज़ बीन यूज टू बिल्ड इट. वाइट मार्बल, लाइमस्टोन, एंड सीनेटर्स, ब्रिक्स. ऑप्शन डी, ब्रिक्स. Which of children does the main hall show? Main hall of his building face. In which direction does the main wall of his milestone? Okay, last question is that in which direction does the main hall of his building face? The Vatican City, Makkah, अक्षरधाम टेम्पल, द गोल्डन टेम्पल. ऑप्शन बी इज करेक्ट, मक्का. इस मास्क्यू फेस कह रहा है इन विच डायरेक्शन डज द मेन हॉल ऑफ इज बिल्डिंग फेस. मेन हॉल की जो बिल्डिंग फेस है वो किस डायरेक्शन में है? तो मस्जिदों में आप देखिए तो लोग नमाज किस दिशा में रह के पढ़ते हैं? वेस्ट की तरफ. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? वेस्ट. चलिए आज के लिए इतना ही. गुड बाय.